Praise the Lord. Greetings to you in the precious and exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is coming very soon. जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमारी वंदना पेश करते हैं। इस प्रत्येक अवसर इस प्रकार की एक कार्यक्रम पर इनिशिएटिव लिया परमेश्वर के दास पास्टर मनु और उनकी फैमिली को प्रत्यु से हम दिल से आभारी हैं। I am very much thankful to Pastor Manu and the Father's House at Goa Church of God. God bless you. परमेश्वर प्रत्येक समय उनको आशीष दे. So let's bow down our heads and pray. Today God is going to speak to us the resurrection, the fact and the value of the resurrection. आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे इस प्रकार बातचीत करने को इच्छा प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की जो इसका वैल्यू और उसके फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसके बारे में हम खुदा की कलाम से I would like to read a verse from the Bible, then let us bow our heads and pray. First हम परमेश्वर की कलाम से एक आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं. For that I would like to read Romans chapter 1 verse 4. And according to the Spirit of holiness was openly designated the Son of God in power by his resurrection from death, even Jesus Christ our Lord. आइए हम प्रार्थना करें. हमारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रत्येक समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंधित कई बातों के बारे में अभी चर्चा करने को खुदावंद आपकी उपस्थिति में एकत्र है. परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं. प्रत्यु से पास्टर मनु और उनकी इस प्रकार की इनिशिएटिव के लिए धन्यवाद करते हैं. जिन लोग इसमें श्रद्धा कर रहे हैं उनको जीवन में परमेश्वर के प्रत्यु से बोल और बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं. Thank you Lord for being with us. Let the Spirit of God enable us, inspire us, urge us, so that we can devotionally understand the word of God. Once again, submit the whole in the mighty hand. We ask in the precious name of our Lord Jesus Christ. Hear our prayer. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंधित कई बातों को हम कई दिनों से सुनते आ रहे थे खुदा की कई कादिम से. Last few days we were hearing the word of God, especially about the resurrection of Jesus Christ from different corners and different perspectives of the different servants of the Lord from different areas. So today also, yesterday also, we were discussed about the reality and the fact of resurrection. कल हम इस प्रकार सुना कि प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की एप्लीकेशन के बारे में और प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान किस प्रकार हमारे सामने स्पष्ट है. What is the importance and nature and credibility of the resurrection of Jesus Christ? Last day we could learn. Today I would like to present before you the value of the resurrection of Jesus Christ and the formations of the credibility of the resurrection of Jesus Christ. आज हम इस प्रकार मनन करते जा रहा है प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की इसकी कीमत वैल्यू क्या है और प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सक्षमता क्या है. So these are the two factors today we would like to discuss and we would like to learn from the word of God. From the value of the resurrection of Jesus Christ first, प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की जो वैल्यू के संबंधित 6 बातें परमेश्वर की पवित्र शास्त्र से हमसे खुदा बातचीत करते हैं. From the word of God there are 6 important points in relation to the value of Jesus Christ is mentioned. First one, the value of resurrection, a sure foundation was provided by it for faith in God. A sure foundation was provided by it for a faith in God. परमेश्वर पर विश्वास करने के प्रति एक विश्वासी के अंदर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला विश्वासी के अंदर परमेश्वर ने इस प्रकार की एक नींव डालते हैं. वो नींव जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान से उनको निश्चित हो जाते हैं.
Because of the resurrections of Jesus Christ, we receive a certainty of our faith. That is in 1 Peter chapter 1 verse 21. 1 Peter chapter 1 verse 21. I would like to read that verse. I am reading from Amplified Bible. Chapter 1 verse 21. Through him you believe in God who raised him up from the dead and gave us honor and glory, so that your faith and hope are in God. So इस वचन में इस प्रकार जो दिया गया है 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21, हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर ने इस प्रकार की विश्वास की एक बीज डाल दिया. Because of the resurrection of Jesus Christ, we have a faith and honor and dignity in God, because our faith is not fake. Our faith is not fake. Our faith is something corroborated. हमारे विश्वास को स्थायित्व परमेश्वर ने दिया गया है. हमारे विश्वास जो उसमें एक प्रत्येक अवस्था खुदा ने हमारे जिंदगी में दिया गया है. So through faith in the resurrection of Jesus Christ, God has given us a wonderful corroborations of our faith. हमारे अंदर इस प्रकार की एक चिरस्थायी स्थापना दिया गया है. It is an unerring certainty to the existence, power, holiness who raised him. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे अंदर इस प्रकार के एक विश्वास परमेश्वर ने स्थापित करते हैं. वो विश्वास जो है शक्तिशाली है, वो अस्तित्व वाली है और परमेश्वर की पवित्रता से स्थापित है. इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको निराश करने की कोई जरूरत नहीं है. मृत्यु के वादी से और मृत्यु की और उस पार में लेके जाने वाला शक्तिशाली है हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ इस महान विश्वास. So the first part of the value of resurrection is a sure foundation provided by faith in us. The second one is a substantial proof of the deity of Jesus Christ is given. Second one, a substantial proof of the deity of Christ is given. Substantial deity, प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता का, प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वरीयता का और सबसे महान सबूत हमारे सामने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे सामने प्रकट करते हैं. Because of the resurrection of Jesus Christ, a substantial proof, it is given to us. Romans chapter 1 verse 4 that we read. रोमियों की पत्री पहले अध्याय की 4th आयत में, as it is written, according to the spirit of holiness was openly designed the Son of God in power, and by his resurrection from death, even Jesus Christ our Lord. So because of the resurrection of the holiness of God, because of the resurrections of the power of God, it has been given us a real fact that Jesus is substantially, very clearly, obviously, that Jesus is the Son of God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र के रूप में हमारे सामने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे सामने पेश करते. रोमियों की पत्री पहले अध्याय की 4th आयत में ये बात हमारे सामने ये पेश करते हैं. According to the spirit of holiness, Jesus was indeed raised a majestic and a tranquil power. Because of the resurrection, it is proved. प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के द्वारा हमारे सामने ये पेश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनका ईश्वरीयता और मृत्यु से भी वो प्रकट कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के शरीर पर, जीवन पर, उनकी अस्तित्व पर उन्होंने खुद अधिकारी थे. He has an all authority upon his body and his life. So that Jesus challenged the Jewish people, you take or dash this body, on the 3rd day I will raise it up. ये शरीर को तोड़ दो, ये मंदिर को तोड़ दो, तीसरे दिन में उसको खड़ा करेंगे. प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके सुनने वाले को यीशु मसीह ने इस प्रकार चुनौती दिया गया है. So the second part or second value of the resurrection of Jesus Christ is
it is a substantial proof of the deity of Jesus Christ is given. That is in Romans 1:4. And third one is, it gives a believer an everlasting high priest. It gives a believer an everlasting high priest. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे सामने यह स्थापित करते, because of the resurrections of Jesus Christ, it has been proved that we have an everlasting high priest. In the Old Testament we see there is a priestly order. That priestly order is a Levitical priestly order. But there is another priestly order in the Bible that we see, the order of the Melchizedek. In the Bible, especially in the whole Bible, there are 4 places it is mentioned about the Melchizedek priestly order. पुराने नए नियम में 2 रीति से इस प्रकार की याजकीय रीति को दिया गया है, पंक्ति दिया गया है. एक तो है जो लेविटिकल ऑर्डर. लेविटिकल ऑर्डर में लेविया की यानी हारून से संबंधित है. इट इज रिलेटेड टू द priestly order of Aaron. बट एरोनिक के याजकीय रीति जो कि इस प्रकार होता है वो कमजोर मनुष्य है. हिब्रूज चैप्टर 7:25, इब्रानियों की पत्री उसकी 7वां अध्याय की 25वां आयत में, हिब्रूज चैप्टर 7:25, it is very clearly mentioned, and therefore he is able to save and uttermost finally for all time eternity because of the Jesus Christ as a Melchizedek order, as a priest. प्रभु यीशु मसीह मल्कीसेदेक की रीति पर महायाजक होने के कारण हमारे अंदर ये क्या होता है, और एक अनमोल और कभी ना मिटने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रत्येक याजकीय इंस्टीट्यूशन, एक प्रत्येक याजकीय रीति, ये प्रत्येक राजकीय और याजकीय पंक्ति हमारे सामने यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रकट किया है. In the book of Hebrews chapter 7, it is verses 1 following, it is mentioned the reality and the fact of the priestly order of Melchizedek. मल्कीसेदेक की याजकीय रीति वहां पर अच्छी तरह से दिया गया है. इब्रानियों की पत्री इसकी 7वां अध्याय की पहले से लेकर, for this Melchizedek king of Salem, the priest of most high God, met Abraham as he returned from the slaughter of the kings and blessed him. During the time of Abraham, this Melchizedek priesthood was a continuous program. And when you come to the Psalms 110 verse 4, there it is mentioned that Jesus is the priest in the order of Melchizedek. भजन संहिता 110 की 4 में इस प्रकार जो लिखा गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह मल्कीसेदेक की रीति पर एक महायाजक है. उस याजकीय रीति से हमारे अंदर इस प्रकार की एक निश्चयता, एक दृढ़ता, एक शक्ति, एक प्रभाव, हमारे अंदर एक आंदोलन इस प्रकार जो दिया गया है. हमारे याजक, हमारे बिचवाई, हमारे मध्यस्थ, हमारे इंटरसीडर, ही इज लिविंग एटर्नली. वो हमेशा के लिए जीवित है, वो मर मिटा नहीं है. उनके खबर अभी भी खुला है, और उनकी खबर अभी भी खुला है. दर्शाते हैं कि हमारे लिए बिचवाई करने वाला, हमारे लिए इंटरसीड करने वाला, हमारे लिए बिचवाई करने का एक महायाजक जीवित है. So according to the order of Melchizedek, it has been Lord your son, and I will not change mine. You are the priest forever in the order of Melchizedek. हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए के मल्कीसेदेक के रूप में जो दिया गया है. पुराने नियम की जो हारून की रीति से, from Aaron, the priestly order, it was temporary, it was transparent, it was not able to stand for men. क्योंकि पुराने नियम की जो हारून के द्वारा प्राप्त किया priestly order कभी वो परमानेंट नहीं थे, वो चिरस्थायी नहीं थे. क्योंकि ये हरेक याजक पुराने नियम में बलि चढ़ाने से पहले अपने आप को, every priest in the Old Testament according to the order of Aaron, they all have to
give a sacrifice for his own unableness or inability. और पुराने नियम में हारून के द्वारा जो कोई जो महायाजक के रूप में और याजक या ऑर्डर में जो आते हैं वो पहले अपने आप की वो पाप के लिए बलि चढ़ाना अवश्य था, और इसलिए मनुष्य के बीच में खड़े हैं तो भी उनको बचा नहीं सकता है। मगर न्यू टेस्टामेंट में we have a priest in chapter 7 of Hebrews. It is mentioned that we have received a priest, or we are under the priesthood of Melchizedek, or through Jesus Christ resurrection we received a priesthood that is eternal. It never perish. It is eternally stand. और हमेशा के लिए स्थायित्व एक याजकीय अवस्था यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल गया है। उसको जो बोलते हैं उनको इस प्रकार जो बताते हैं कि वो मलकीसेदेक के द्वारा मिल गया। In Luke chapter 22 verse 31 and 32 and John chapter 11 verse 42, these two references, Luke chapter 22 verse 31 and 33 and John chapter 11 verse 42, these two references, it is showing that Jesus' presence is always with us. At every moment of our life, the presence of Jesus, the resurrected presence of Jesus is with us. और कई बार हमें लूका की सुसमाचार 22वें अध्याय में हम कई बार इस प्रकार सोचा कि हमारे जिंदगी बहुत बड़ी मुश्किल की अवस्था में होते समय भी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे संग संग हमेशा होता है। द प्रेजेंस ऑफ जीसस इज ऑलवेज विथ अस, हमारे प्रभु यीशु मसीह का। सो इन लूक चैप्टर 22 verse 32 it is mentioned that Jesus himself said to Simon Peter, it is Simon, listen to Satan has asked excessively that you be given up him and that he might be sift you like a grain. और तुम्हें इस प्रकार गेहूं की दाना के समान इस प्रकार तुम्हें जिंदगी को और इस प्रकार को कई बार चुनौती देने को शैतान मेरे पास आ गया, मगर तुम्हारे विश्वास को समाप्त ना होने के लिए I did not allow, but I have prayed especially for you that your faith may not fail, because our faith should not be fail. ये मलकीसेदेक he is with us always, हमारे साथ तो मलकीसेदेक हमारे साथ हमेशा है। यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 11वें अध्याय की 43 में, यूहन्ना की गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 verse 42 में the same verse it is mentioned like there also, वहां पर इस प्रकार जो दिया गया है, and I walked a man who had been touched and his hands and feet with a napkin bound around him, and Jesus said to him, free him from the burial wrapping and let him go. In the verse 42 it is, I know always hear and listen to me. I have said, Jesus is praying to the Father. It is like that. Whenever, whatever I used to pray, and you always hear me. So the second part or the third part of the valley of resurrection is the presence of Jesus is showing us as a Melchizedek, as a eternal priest. हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमेशा हमारे सामने है एक मलकीसेदेक के रीति पर। वो ये तीसरी वैली ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फोर्थ बात जो है, चौथी बात हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे सामने जो पेश करते हैं, देयर इज अ पावर रेसिडेंट इन द ट्रूथ ऑफ इट टू सेव मन। देयर इज अ पावर रेसिडेंट इन द फेथ टू सेव मन। मनुष्यों की बचाने को एक कार्य प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को ऐलान करने से होता है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपने दिल से विश्वास करने से और क्या प्रभावशाली होता है। दैट इज इन रोमन्स चैप्टर 10 verse 9। रोमन्स चैप्टर 10 verse 9 इट इज मेंशन लाइक दिस। रोमियों की पत्री 10वां अध्याय की उसकी 9वां आयत में इस प्रकार जो यीशु मसीह को कोई भी दिल से अंगीकार करेगा तो बिकॉज यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस विथ योर लिप्स दैट जीसस इज द लॉर्ड and in your heart to believe that God raised him from the dead, you will be saved. Romans chapter 10 verse 9 it is said, in your heart you say that God raised him up
from death, you will be saved. So the fourth part of the value of the resurrection is when you confess your mouth and when you say from your heart, or when you believe in your heart, there is an instantaneous things is happening in your life. आप प्रभु यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार करते और दिल से और मरे हुए से जिलाकर विश्वास करने से क्या होता है? उद्धार आपकी व्यक्तिगत जीवन में. So when you say in your heart that Jesus raised from death, instantaneously or immediately, abruptly, God grant you salvation in your life. That is when God give you salvation, you receive salvation, you shall be saved. आप प्रभु यीशु मसीह को दिल से इस प्रकार जो अंगीकार करेगा, यीशु मरे हुए से जी उठा गए, उसके द्वारा अब उद्धार पा सकता है. So what a wonderful things it is happening in your personal life. So the fourth value of the resurrection is you confess with your mouth and you believe in your heart. So always faith comes from your life. There are two ways, faith and belief. Faith is a fact or incident, and belief in your personal life, it is an experience. The two ways the Christian life comes to being. और मसीह की जिंदगी में विश्वास को दो रीति से इंग्लिश में जो दिया गया. नंबर वन, faith. Faith, it is given by God, or it has done. It was a legal act that God has done in the death of Christ. प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में परमेश्वर ने जो किया हुआ महान कार्य है. फेथ का मतलब, यकीन का मतलब वही है, और दूसरी विश्वास, तो बिलीव. It is an experience. You and I should have to personally believe this fact. When you personally believe the incident which happened on the cross of Calvary and God raised him up, so instantly what happened? There is a legally and white दो ways, दोनों रीति से आपके अंदर उद्धार की अवस्था पाए जाते हैं. ये दोनों रीति से फेथ और बिलीफ, ये दो रीति से आपके लाइफ में होने से क्या होता है? विश्वास और उद्धार उत्पन्न होता है. That is what in Romans chapter 10 verse 9 it says. The fourth fact. And the fifth one is, and the fifth fact of our belief or the value of resurrection is in accordance to God's promise to the fathers, and therefore their fulfillment. In accordance to God's promise to the fathers and therefore the fulfillment. Acts chapter 13 verse 32 to 33. प्रेरितों की काम उसकी 13वें अध्याय की 32 और 33 इन वचन में इस प्रकार जो दिया गया है, दो बात प्रति हमारे सामने पेश करते. हमारे पुरखाओं को अब्राहम, इसहाक की याकूब को परमेश्वर ने इस प्रकार एक वाचा बांधा. अब God has made a covenant with the patriarchs Abraham, Isaac and Jacob, and God has given them a promise about the Messiah. And the promise of the Messiah is, there are three ways the Messiah promise has been to be fulfilled. Number one, the humiliation of the Messiah, and second one, the exaltation of the Messiah, and third one, the Messiah became a king, and the king royalness or royalty of the Messiah. और पुराने नियम में और हमारे पुरखाओं को, बाइबल की अब्राहम, इसहाक, याकूब और उनकी संतान को परमेश्वर ने इस प्रकार की एक वायदा दिया, इस प्रकार की एक वाचा दिया, और मैं तुम्हारे लिए एक नायक को, मैं तुम्हारे लिए एक मसीहा को भेजेगा. उस मसीहा को तीन अस्तित्व हमारे सामने जो दिया गया है. नंबर वन, ये मसीहा की ह्यूमिलिएशन, मसीहा की दीनता और मसीहा की हम्बलनेस. यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय में, Isaiah chapter 53, it is mentioned about the humiliation of the Messiah. And the second one, the exaltation of the Messiah. That means the resurrection and the ascension of the Messiah. ये प्रभु यीशु मसीह का और उनकी पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण और पिता परमेश्वर की दाहिने हाथ में जा बैठकर हमारे लिए बिचवाई करना, वो ये the exaltation of the Messiah. And the third one is the coronation
और द रॉयल्टी ऑफ द मसाया, इस्राएली लोगों के लिए। और एक ऐसे एक राजा आएगा, यशायाह नबी के पुस्तक 32 अध्याय की पहली आयत, ऐसे चैप्टर 32 वर्स 1, ए king is going to come and rule over the whole Israel। और इस्राएल में ऐसे एक राजा आने वाला है। उस राजा के बाद उनकी राजकीय शासन के बारे में दिया गया है। ये तीनों फुलफिल होना चाहिए। और ये फुलफिलमेंट हैज बीन द फर्स्ट स्टेप इज दैट द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसकी द प्रॉमिस वेर फुलफिल्ड थ्रू द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। So that is the apostles, many a times they mentioned to the people of Israelites that you crucified and God made him rise and we are its witness। और कई बार प्रेरित लोगों ने इस्राएली लोगों को इस प्रकार, फरीसी और शास्त्रियों को, महायाजकों के सामने पेश करते सब इस प्रकार बताया, तुम लोग सूली पर चढ़ाया मसीह को परमेश्वर ने जिलाया और उसका हम गवाह है। We are eyewitnesses। हमने जो देखा है, हमने जो छुआ है, हमने जो एहसास किया है, ये तुम्हें बताते हैं। And all Israel anticipated the fulfillment of the messianic prophecies and the national honor and glory। सारे इस्राएली सभा इस प्रकार जो विश्वास करते हैं मसीहा के द्वारा इसी एक अवस्था आने वाला है। वो अवस्था क्या है? सारे इस्राएली देश को इस प्रकार मसीहा के द्वारा उनकी इज्जत और सम्मान और महिमा मिल जाएगा। So all the Israelites they believe। Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14, Hosea chapter 6 verse 1 to 3, एसेकियल नबी के पुस्तक 37 का 1 to 14 और होशिया उसकी 6वां अध्याय की 1 से लेकर 3। इस वचन में इस प्रकार सारे इस्राएली लोग इंतजार करते आ रहे थे कि एक मसीहा आएगा। ये मसीहा विल कम and he will establish the kingdom in this earth। That is in Daniel chapter 2 also। The Messiah will come, he will establish a kingdom। It is an eternal kingdom। और मसीहा की पुनरुत्थान के द्वारा ये हमारे सामने ये 5th बात भी स्थापित किया। पुरखाओं को यानी फरफादिश को, पेट्रियार्क को जिस प्रकार परमेश्वर ने जो वायदा किया वो वायदा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा स्थापित किया है। That is in Acts chapter 13 verse 32 and 33 it is mentioned। And the 6th value of the resurrection of Jesus Christ, it is a pledge and guarantee for our resurrection। It is a pledge and guarantee for our resurrection। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे सामने परमेश्वर ने ये पेश करते हैं कि हमें भी ऐसे एक पुनरुत्थान है। और कुरिन्थियों की 15 अध्याय की 23 वचन में इस प्रकार जो दिया है, पुनरुत्थान की पहला फल प्रभु यीशु मसीह है। और बाकी उनके जो पंक्ति पर आ जाते हैं, everyone is according to the order। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में कई कब्र खुला और उनके पुनरुत्थान के बाद वो खबर से बाहर आ गया। मत्ती के सुसमाचार में ये बताया गया है। So the death, even though it is a terror, but in 1 Corinthians chapter 15 verse 55 to 57, पहले कुरिन्थी उसकी 15 अध्याय की 55 से 57 तक इस प्रकार जो दिया है, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरा विजय कहाँ है। So because of the resurrection of Jesus Christ, because of the resurrection of Jesus Christ, it has been given a guarantee and pledge that we also will be raised। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें भी ये स्थापित करते हैं कि हमें भी एक पुनरुत्थान आने वाला है। उसके लिए हम इंतजार करते हैं। 1-2 पॉइंट और द फॉर्मेशन ऑफ द रिसरेक्शन भी बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। और after the resurrection of Jesus Christ, 40 days Jesus was with the disciples and the followers। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिन अपने प्रत्येक लोगों के साथ रहा और उन्होंने जीवित करके कई सबूतों के द्वारा हमारे सामने पेश किया। प्रेरितों की काम पहले अध्याय की 3री आयत में जो दिया गया है, उसमें 4 रीति से हमारे सामने जो पेश करते। नंबर 1, क्रिस्टोफानिया। All the New Testament believers, especially the first century believers, they believed Jesus, the raised one।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टोफानिया। द राइज टू जीसस, पुनरुत्थान किया वो मसीह पर लोग विश्वास करते थे। उनमें कई लोग अभी भी जीवित है। ये पत्रिका लिखने के समय में प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में जो बताया कि 500 लोगों की इकट्ठे उन्होंने उनके सामने पेश किया। सेकंड वन इज एन अपोलोजेटिकल थिंकिंग, यानी एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 18 जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में प्रेरित पौलुस प्रचार प्रसार करते समय एपिक्यूरियन स्टोइक्स उसको रिडिक्यूल किया, डाउट किया। उनके सामने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्थापित किया गया। एंड द थर्ड वन इज इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ द चर्च आफ्टर द रिजरेक्शन जीसस केम। The church go and preach, I have received all authority in heaven and on earth. स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। And the church calendar also started from the resurrection of Jesus Christ. Because of the resurrection, God has given us a missionary obligations. Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Jesus has given us an obligation. Fourth one, it is a contemporary narrative style. प्रभु यीशु मसीह हमारे संग संग चलते हैं। लूक चैप्टर 24 वर्स 14 टू 35। प्रियासो, इस प्रकार बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वैल्यू और प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की फॉर्मेशन और स्थापना हमारे सामने पेश करते हमें भी गारंटी देता यीशु आने वाला है। मेरे शब्दों को एक समाप्त करते, मेरे सुनने वाला प्रिय भाइयों और बहनों, आपके व्यक्तिगत जीवन में और कोई भी संदेह, चाहे एपिक्यूरियन स्टोइक की इस प्रकार के डाउट्स और रिडिक्यूल किया गया तो भी they began to say what this babbler is trying to say, but Jesus raised from that. क्योंकि कई सालों से यहूदी लोग इस प्रकार की गड़ी गट्टी कहानी उनके सामने पेश किया है, और आज यीशु मसीह के पुनरुत्थान एक हकीकत, एक सच्चाई है, एक वैल्यू है। हमारे जीवन में ये प्राप्त करके आगे चलने को प्रभु मदद करेंगे। आइए हमारे आंख बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हमारी ईश्वर की पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, वचन सुनाओ हर एक व्यक्तियों के जिंदगी में प्रभु बड़ी आशीष दे, खुशी दे प्रभु, जिंदगी दे, आशा दे प्रभु जी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे सामने उसके एक वैल्यू और उसको एक विश्वास की स्थापना को आपने स्थापित किया है, वो हमें पाकर आके चलने के लिए मदद करिए। बस मनु और उनकी फैमिली, उनके सेवकाई के लिए धन्यवाद करते, यीशु नासरी के नाम से हमारी प्रार्थना सुनता जी, आमीन। Thank you.